Praise the Lord. It's good to be in the house of the Lord. Amen. And I'm so glad that I found somebody here, my brother, who came from the same, whose forefathers came from the same area where I come from. Sultanpur is not very far from Lucknow, very close. And we usually used to go there and preach the gospel in that area. So we thank God. I know somebody was from Mirzapur and other places which is not very far from my city, Lucknow. So thank God for each and every person. Today is the last night of this program, this crusade or praise fest. And that's why I want to take opportunity to say thank you. Thank you to all of you. Thank you to all the committee members who have invited us, especially Pastor Ami Prasad and our dear Pastor Philip. I thank you all once again for giving us this opportunity to come here. One thing I noticed when I came here from the first day, that pastors are very active. And this is a very good sign of church growth and church building. Building doesn't mean this building, but the building for Lord Jesus Christ. And it's good. And I encourage all the pastors, those who are here, wherever you are sitting, this side I can see, that I just want to encourage you, be active. Because when you will be active, your congregation will be active. Right? Sometime back in India, I see that when the pastors, they become pastors, reverends, and whatever you call, they think that their time just to sit there and let others do the things. But God has called us to be servant. God has called us to be active, to do something. Jesus himself was very active, right? He was going with his disciple here and there and preaching the gospel. He was not sitting in an AC room and just relaxing and said, okay, you do the work, let me relax. No. But God is, He's the greatest example for our ministry. So I just want to encourage you, and I know these young people, as Pastor was telling when I just entered, that we can see the future of the church in Fiji when we see these young people. Because they are the future. They are the future. And the responsibility is ours, that we will teach them, we'll give them opportunity to come forward and do something for the Lord. Maybe they will do some mistakes. Not maybe, but they will do some mistakes. But by mistake they learn. And when we teach them the right thing, definitely they will grow day by day and Lord will use them. Many times it happens when these young people don't get opportunity, they then go and sit somewhere in the back. They think that they are not wanted here in the church. So they go out of the church. But once they will be given opportunity, definitely they will do many things, bigger things for the Lord. Amen. वो बड़े-बड़े काम करेंगे अगर तो उनको मौका दो, उनको यूज करो प्रभु की महिमा के लिए, चर्च में उनको लीडरशिप में आगे बढ़े, परमेश्वर उनको यूज करेगा. सो प्रभु का धन्यवाद हो हर एक जन के लिए. I really thank God for each and every person here. Whether you are pastor, you are layman, you are just a church member or any church member, God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे. और हमारा विश्वास है कि ये 4 दिन में परमेश्वर तुम्हें आशीष दिया है. पिछले 4 दिन में वचन के द्वारा तुम्हें आशीष मिली, कुछ न कुछ तुम सीखा है. ये वचन आउटडेटेड नहीं है, याद रखना. दिस वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट आउटडेटेड. कई बार हम सोचे तो आउटडेटेड है, बहुत पहले लिखा गया है ना. पौलुस लिखा, मर गया. पतरस पीटर लिखा, वो भी खत्म हो गया. यूहन्ना और कुछ लूका यूहन्ना लिखा, वो भी मर गया. नहीं, आउटडेटेड नहीं है. आज भी वैसे ही उसको बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं सार्थक है ना. इज रेलेवेंट टुडे ऑल्सो एंड इज नीडेड फॉर आवर लाइफ्स.
ये बहुत ज़रूरी है कि वचन को हम पढ़ें, इसके अनुसार चलें, ये वचन के अनुसार ज़िंदगी बिताएं। और आज जो चर्च की सबसे बड़ी एक ज़रूरत है, the biggest need of the church is in today's in present time is to come back to the word of God. आज हम परमेश्वर के वचन पर फिर से आ जाए। बहुत चर्च है, हम यहाँ देखते हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ वचन आपको सिखाया जाता है, वचन से बोला जाता है, वचन आपके सामने रखा जाता है। लेकिन बहुत ऐसे चर्च हैं जहाँ ये वचन को नहीं प्रचार होता ना, बड़ा बड़ा फिलोसफी प्रचार होगा, बट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग, वो एक आध इधर उधर बोल दे तो बोल दे, लेकिन बाकी कहानी कथा ज़्यादा होता है ना। परमेश्वर चाहता हम फिर से वचन पर आए, वचन को जाने, वचन को सीखें, वचन के अनुसार चलें। इसीलिए दाऊद कहता है, दिस इज द लाइट ऑन माई पाथ, द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियारा है ना, उजियारा है। ये वचन है जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा, नहीं तो भटकते रहेंगे, यहाँ से भटकते रहेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। आज हम लोग देखें, हम एक दिन बैठ करके अपने ऑफिस में हम ऐसे ही एक लिस्ट बना था कि कितने टाइप का मसीही लोग होते हैं, कितने टाइप के क्रिश्चियन लोग होते हैं चर्च में, जनरल तौर पर, एक कोई ऐसे तौर पर नहीं। तो हम कई लिस्ट बनाया, नाम आता गया, तो उसमें था एक असली, एक फसली, एक नकली और लेकिन एक और क्रिश्चियन आया, उसको बोलते हैं फ्रॉग क्रिश्चियन फ्रॉग जाने में यहाँ से वहाँ कूदा करे कभी चर्च में यहाँ नहीं पादरी कुछ वो किया तो उधर कूद जाए, वहाँ नहीं कमेटी में रखा तो उधर कूद जाए। तो वो क्रिश्चियन मत बनो, है ना। कूदे से कोनो फायदा नहीं है, यहाँ से वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। अपने चर्च में जुड़े रहो, अपने चर्च के साथ जुड़े रहो, अपने चर्च के लिए कुछ करो, प्रार्थना करो। कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करो, प्रे फॉर योर चर्च। हालेलुया। Many times when I go and preach in the churches, in church service, Sunday service, I ask a question, कितना लोग हैं जो आज अपने पादरी के लिए प्रार्थना किया, अपने पादरी के लिए प्रेयर किया सुबह आए से पहले, चर्च में आए से पहले? बहुत कम लोग हैं जो प्रेयर करता है। Don't you think that your pastor also needs your prayer? Many times you go to the pastor and ask, पादरी प्रेयर कर दो, है ना, प्रेयर कर दो। एक दिन जाएगा तो बोलेगा, पादरी हमारा मूड़ी पिरा रहा है, तो पादरी दुआ कर दी तुम्हारे लिए, हाँ उसे तो करे क्या है ना। एक दिन जाके, पादरी हमारी पीठ बहुत पिरा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, दुआ कर दो। फिर जाए, पादरी हमारा गोड़ पिरा रहा है, तो गोड़ के लिए भी दुआ कर दो पकड़ करके, है ना। चौथी बार जाएगा तो पादरी बोली, अब तो हमारा गटे ही पिरा रहा है, तुम्हारे लिए दुआ करते करते अब हम प्रेयर नहीं करेगा तू पादरी से तो कितना बार प्रेयर करा लिया, लेकिन कितना बार पादरी के लिए दुआ कर? How many times you pray for the pastor? This is the question. And you know, pastor needs your prayer, his family needs your prayer. And many times we don't pray for our pastors, our leaders. Being a church member, जो भी तुम्हारा पास्टर है, जैसा भी है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रेयर करो, उसको प्रभु के सामने लाओ। खासतौर से अगर डेली प्रेयर नहीं कर सकते तो कम से कम संडे को, संडे मॉर्निंग जब उठो तो when you get up, you just say, the Lord bless my pastor. I am going to the church at 9 o'clock or 9:30, whatever time I am going this time. Bless my pastor, bless his family. And I tell you, God will give you reward of that. मैंने आजमाया है because pastors are God's people, chosen people who are leading the church, right? They are the representatives of God. Pastors are the representatives of God. And when you pray for the representative, it means you are praying for the company. वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव लोग आता है ना, वो जो मेडिकल कंपनी का एमआर लोग है, मेडिकल ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, दवाई अपना कंपनी का दवाई बेचे, है ना, अपने कंपनी का चीज़ दे। यहाँ भी होता होगा, इंडिया में बहुत एमआर लोग होता है ना। तो ऐसे बहुत लोग काम करते हैं जो अपने कंपनी के लिए काम करते हैं। तो व्हेन यू
when you talk to that representative and admire that representative and bless him, it means you are blessing the company, right? You are blessing the company which is producing the thing which he has brought to you. और इसी तरह पादरी भी हो, कोई चीज बेचे के लिए नहीं आता, लेकिन तुमको परमेश्वर का वचन देता है, तुम्हारा अगुवाई करता है. He is praying for you. I have heard for pastors. I have heard for pastors, especially pastors, those who are working in remote areas. That's why I told you that nowadays we are feeding 16 pastors in different areas in India. जो जिनको मारा गया, जो जलाया गया उनका घर, उसमें से 9 pastors अभी prison में है. Because they are the representative of God. You must pray. And when you will pray for your pastor, I tell you, it is my challenge. I tell you, you will be blessed. You will be blessed. Amen? Amen? Praise God. Prabhu, आप सबको बहुत आशीष दे. On behalf of my wife and myself and on behalf of my organization, I want to say again, thank you so much. Thank you so much that you have accepted us and given us opportunity to share what God has laid on our hearts. जो प्रभु हमारे हृदय में रखा, उसको तुम्हारे साथ हम बांट दिए. हमारा वचन नहीं, ये तो तुम कई बार सुन चुका होगा, आज भी सुनेगा, वो भी पुरानी बात है, कोई नया बात नहीं बता रहा मैं. लेकिन whatever we are sharing is the Holy Spirit which talks to you. This is my prayer. परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात करे ना, परमेश्वर का आत्मा, और तब तुम बोल सको, मेक मी दैट सेंचुरी होली. और तुम प्रभु मुझको सेंचुरी बनाओ, पवित्र बनाओ, ताकि हम तुम्हारे काम आ सकें. हम चाहते हैं एक बार फिर से हम वो गाना हिंदी में हम किया था, तो उस फर्स्ट डे हम लोग गाया था. मेरे ख्याल से शायद होगा, स्क्रीन पर अगर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा. प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से. प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से. मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए. सब लोग आने की कोशिश करेंगे. If you want, you can close your eyes, raise your hand. You can sing this song and ask the Lord. It's a kind of prayer. Lord, I want to live for you. Lord, make me such a holy place, a sanctuary, so that I can be used for your glory and honor. And if you are dedicating your life to the Lord, you just sing with me this song. प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से. मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए. प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से. मैं
साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हैं जो हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। We thank you, Lord, because you make us holy. By your blood, we become holy, Lord. We pray that, and we thank you, Lord, that you never leave us nor forsake us. We thank you for this song. It teaches us that I want to live for you. And tonight, Lord, I want to promise you, Lord, I will live only for you. प्रभु, आज हम ये प्रॉमिस करना मांगते तुम्हारे सामने, हम तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए जिएंगे, केवल तुम्हारे लिए जिएंगे। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, और हमारे जीवन से तुम्हारी महिमा हो, यही प्रार्थना है। ये वचन को समझने और समझाने के लिए पवित्र आत्मा तुम हमारी अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। As I told you before that before coming here, we were praying, and God has given us one word to share with you, and that word is faith, विश्वास। जब हम प्रार्थना कर रहे थे यहाँ आने से पहले, परमेश्वर हमको शब्द दिया विश्वास, और पिछले 4 दिन में हमने कहीं ना कहीं विश्वास के बारे में सीखा है। परमेश्वर पर विश्वास रखना, क्योंकि इसके बिना सब कुछ बेकार है। इफ वी डोंट हैव फेथ, तो हमारा बिलीवर कहलाना भी ठीक नहीं है। हम लोग बोलते हैं हम बिलीवर हैं, आई एम ए बिलीवर, विश्वासी हैं, लेकिन अगर विश्वास है ही नहीं तो फिर विश्वासी कैसा है ना। अगर विश्वासी नहीं है, विश्वास हमारे अंदर नहीं है, तो हम विश्वासी कैसे कहला सकते हैं। लेकिन कई बार हम लोग बोल तो देते हैं विश्वासी हैं, लेकिन हमारे अंदर विश्वास, फेथ नहीं होता। आज की शाम भी हम उसी विश्वास की चर्चा करना चाहते हैं, उसी विश्वास को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा विश्वास बढ़े। प्रभु ने मुझको बोझ दिया है कि इन दिनों में जहाँ भी हम जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, विश्वास, लोगों के विश्वास को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर ना हो, हमारा विश्वास छोटा मोटा ना हो कि यहाँ जो बैठे हैं वो भी ना देख पाए। लेकिन आज लोग देखना चाहते हैं हमारा बड़ा विश्वास, ए बिग फेथ। पीपल वांट टू सी ए बिग फेथ इन आवर लाइफ। प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर बड़ा विश्वास हो, और यही कारण है यीशु मसीह जहाँ भी गए, जब भी उन्होंने कोई मिरेकल किया, उन्होंने कहा इसका विश्वास बड़ा है। अब फर्स्ट डे मैं बता रहा था कि कनानी स्त्री के बारे में, एक नाइट लेडी थी, वो आई, प्रभु जी मेरी बेटी बीमार है, दुष्ट आत्मा सता रही, उसको मर जाएगी, तो कुछ कर। प्रभु जी तो पहले बहुत कठोर शब्द बोले, ऐसा शब्द बोले कि हम और आप शायद वहाँ होते तो भाग जाते। कहते प्रभु भले मर जाए, तू तो हमको क्या समझता है, जानवर समझता है। प्रभु ने कहा क्या मैंने अपने बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डाल दूं? That was the word God, Jesus used that. He used the word, he just gave example of an animal. क्या मैं कुत्ते के सामने डाल दूं? वो स्त्री बोली तू ठीक कहता है प्रभु, तू ठीक कहता है प्रभु, लेकिन कुत्ते भी वो चूर चार जो मेज से गिरते हैं उनको खाते हैं, वही दे दे, वही काफी है। That was a big faith. यही सबसे बड़ा विश्वास था। और यीशु मसीह घूम करके बोलते हैं मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा, और कहा जा तेरी बेटी ठीक हो गई, और उसकी लड़की उसी समय ठीक हो गई। एक सेंचुरियन आया प्रभु यीशु मसीह के पास, कहे लगा मेरा नौकर बीमार है, माई सर्वेंट इज नॉट वेल। द सेंचुरियन केम टू जीसस क्राइस्ट, सेड माई सर्वेंट इज नॉट वेल। अपने सर्वेंट के लिए आया, पता नहीं कितना दूर से आया था,
प्रभु जी बोले चल जा तू, मैं आता हूं तेरे घर पे, प्रार्थना करूंगा उसके लिए। कहने लगा नहीं 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 प्रभु जी, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे छत के नीचे आए, यहीं से बोल दे मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह फिर घूमे भीड़ की ओर, कहने लगे इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा। आज वही बड़ा विश्वास आज हमारे तुम्हारे जीवन में प्रभु देखना चाहता है, लोग देखना चाहते हैं। आज वही विश्वास बड़ा विश्वास है जो लोग हमारे तुम्हारे जीवन में देखना चाहते हैं। वही बड़ा विश्वास है जो आज हमको संसार को दिखाना है। वही बड़ा विश्वास है जो आज फिजी के विश्वासियों को, लोगों को दिखाना है। बड़ा विश्वास दिखाइए, और यही मेरा एम है प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि हमारे अंदर बड़ा विश्वास हो, हमारा विश्वास और बढ़ता चला जाए, यीशु मसीह में हम और हमारा फेथ बढ़ता चला जाए। प्रभु करे हमारा तुम्हारा जीवन ऐसा ही हो। So this is my prayer, that our faith will increase. Amen? Amen? Otherwise, there is no need to say I am believer. If I don't have faith, I don't believe in Jesus Christ. Today, people want to see big faith in our life. They want to see a big faith. बड़ा विश्वास देखना मांगते हैं। और आज के दिन के लिए जो एक बाइबल में से जो घटना, जो एक इंसिडेंट मैंने चुना है, वो बहुत जाना पहचाना है। Many times you must have studied on that or preached on that, but again, it is just to remind you. I have taken this passage from the Bible. It is we found it in Joshua chapter 6 and verse 16. Joshua chapter 6 verse 16. यहाँ लिखा हुआ है, it came to pass at the seventh time when the priests blew the trumpets, Joshua said unto the people, shout, for the Lord had given you the city. तब सातवीं बार जब याजक नरसिंह ये फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। अभी दिया नहीं है, अभी गिरा नहीं। देखो ध्यान देना, अभी तक दीवार गिरी नहीं। There is a problem before this Israel, the people of God. The problem is how to enter, how to conquer this city. इस सिटी को, इस शहर को, यरीहो को कैसे कॉन्कर करें। यरीहो के बारे में हम थोड़ा तुम्हें बताए मांगता है। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी। यरीहो जो है बहुत सुंदर जगह है। उसको जैसे होता ना स्विट्जरलैंड और ऐसी जगह जहाँ लोग कहते हैं हम वहाँ जाए, बहुत सुंदर जगह है। इट्स ए ब्यूटीफुल सिटी। पीपल यूज्ड टू कम फ्रॉम अदर प्लेसेस टू स्पेंड देयर हॉलीडेज देयर। वहाँ पर लोग आते थे अपना छुट्टी बिताने के लिए। वहाँ पर बहुत झरने थे, बहुत स्प्रिंग्स थे। देयर सो मेनी स्प्रिंग्स एंड लेक्स एंड एवरीथिंग वाज देयर। इट वाज ब्यूटीफुल सिटी। The population of the city was 100,000 people. करीब 100,000 लोग का पॉपुलेशन उस पूरी सिटी में था। उस सिटी का खास बात यह है कि वो चारों ओर से बड़े दीवार से घिरा हुआ है, बड़े दीवार से घिरा हुआ था। There was a big wall. It was under that wall, and there was only one gate, which used to be open only on daytime. उस पूरी दीवार में एक ही गेट रहा जो रात में बंद कर दिया जाता रहा और दिन में खाली खोला जाता रहा। रात में कोई ना बाहर जा पाए ना भीतर जा पाए। वहाँ पहरा लगता था। Guards were there. They see who is coming in or who is going out. It was not easy to enter in that city. But it was a beautiful city. But you know, one more thing is there.
आप बाइबल में पढ़ोगे तो आप देखोगे यीशु मसीह बहुत से अंधों को यरीहो में चंगा किया. He has given eyes to many blind in that city, in city of Jericho. Why? Even today, scientists are trying to understand why this eye problem is there. वहाँ पर जेरिको की जो एक प्रॉब्लम है, कुछ नहीं जानते कि वहाँ के पानी की बात है या वहाँ के कुछ सॉइल की बात है या क्या बात है. वहाँ पर आँख की प्रॉब्लम बहुत है जेरिको में. हमको भी ये नहीं मानता, ये तो बाद में हमें पता चला. लेकिन हमको पता चला जब हमारी खुद की बेटी के एक फ्रेंड है और उसका अंकल जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ही वर्क्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, और उसको भेजा गया जेरिको में. उसको भेजा गया वहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए. तो जेरिको में सब कुछ अच्छा था, लेकिन वहाँ की आँख की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में. बहुत लोग ब्लाइंड हो जाते, बहुत से आँख में उनके आँख कमज़ोर हो जाती है, देख नहीं पाते. कोई ना कोई आइस प्रॉब्लम वहाँ पर है. और अभी भी साइंटिस्ट लोग जो हैं, अभी भी जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई दिस eye problem is there in Jericho. And then I understood why Jesus healed. Jesus has given sight to many blind there. Jesus has given sight to many blinds there. कई बार प्रभु यीशु मसीह जेरिको में गए, अंधों को आंखें दिया. लिखा अंधे को चंगा किया. एक अंधा आया दौड़े दौड़े, प्रभु हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. प्रभु उसको छुए. तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यही कि देखने लगूं. और लिखा है प्रभु ने कहा जा, वो ठीक हो गया. तो दिस इज द जेरिको, द सिटी ऑफ जेरिको. सिटी ऑफ जेरिको का अगर थोड़ा जियोग्राफिकल थोड़ा हम जानने की कोशिश करें, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ पाम भी बोला जाता है. ड्यूटोनॉमी उसका 34 चैप्टर एंड 5 वर्स में आप पढ़ सकते हैं. वहाँ पर लिखा है 3rd वर्स में 34:3 में वहाँ लिखा है सिटी ऑफ पाम्स. वहाँ पाम ट्री बहुत होते हैं, वहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत हैं, वहाँ सारी सुविधाएं, सब कुछ है, बहुत ही अच्छा है. इज 5 miles वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर. वहाँ करीब जॉर्डन रिवर से 5 माइल दूर है, वेस्ट में है. और जो डेड सी है उससे 7 माइल नॉर्थ में है. आप अगर नक्शे में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एक ऐसी जगह में ये सिटी है. और वहाँ तक इस्राएली लोग पहुँच गए, और पहुँचने के बाद लिखा हुआ है उनके लिए प्रॉब्लम आ गया, ये दीवार कैसे गिरी है ना. हाउ विल गो थ्रू दिस सिटी, वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड विदाउट कॉन्करिंग दिस सिटी. हम जब तक इसको विजय प्राप्त न कर लें तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. हम कनान देश में पहुँच नहीं सकते जिसका परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है. But Joshua, the leader, he had that faith. जब बाइबल में हम यहाँ पढ़ते हैं तो अभी जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है. This is faith. Bible says whatever you ask in my name, you believe that it has been done. हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? It will be done. It may be done. It can be done. But what Bible say? It has already been done. बाइबल ही कहती हूँ तो हो गया, जो तुम मांगा वो तुम्हें मिल गया, दिखाई नहीं दे. And that is why the definition of Christian faith is found in Hebrew chapter 1, as Hebrew chapter 11 and verse 1. Hebrew chapter 11 verse 1, what definition of faith, Christian faith? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है उसका प्रमाण है. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय. नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सीन. नॉट सीन, यही विश्वास है. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली, you cannot understand Christian faith by logic. मसीह विश्वास को तुम लॉजिक से नहीं समझ सकते. लॉजिक जो समझते हो ना, बहस करके कि ऐसा नहीं तो वैसा हो, और थ्रू साइंस you cannot understand
Christian faith. You have to believe it. When you ask something, you know that God has done for you. Amen. When you ask something, you say, Lord has already done for you. और यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं, a problem आ गया, that is a big problem. How to go through this city? Wall तो हम लोग पार नहीं कर पाए. It's a big wall. We cannot cross that wall. Only one door. We cannot enter in that door. But Jesus had a plan. The God has a plan for them. परमेश्वर के पास एक योजना रही. मेरे भाई बहन, हम आपको ये बताना चाहे, आप जो भी हो, whosoever you are, whatever church you come from, God has plan for your life. Hallelujah. परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए एक योजना है. हम लोग समझ नहीं पाते, ये प्रॉब्लम है. We are not able to receive by faith His plan. We are not able to understand it. And then we blame God. परमेश्वर नहीं करे कुछ. परमेश्वर हमारे लिए ऐसा ना करे. परमेश्वर हमारे लिए ये ना करे. हम तो मांगा रहा नहीं किया. Don't blame God. He has plan and good plan. Bible says, जो योजना परमेश्वर तुम्हारे लिए बनाया है, वो लाभ की है, हानि की नहीं है ना. It is for benefit, your benefit, my benefit, not to destroy us. God has planned for your life. Maybe you are sitting here and thinking, I don't know what I will do. हो सकता है आप यहाँ बैठे हुए आप कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम हम क्या करेंगे पादरी, अब हमारा तो जीवन का भविष्य नहीं है. I don't have any future. I don't see anything in my life. People think I am useless. People think that I cannot do anything. Just forget it. Forget it. Just know that God has planned for your life. God has planned for your life. परमेश्वर की एक योजना है तुम्हारे लिए, वो उसको पूरा करेगा. But you have to do something. You need to have that faith. तुम्हारे अंदर वो विश्वास होना जरूरी है कि परमेश्वर की योजना को तुम अपने जीवन में स्वीकार करो. परमेश्वर पहले से योजना बनाए रहा. दीवार कैसे गिरी है ना, लेकिन ईसाई लोग को पहले समझ में नहीं आया. पहले तो घबरा गए, कैसे होगा, how it will fall, how we will conquer this city, how we will cross this place and go to the place of honey and milk. दूध और मधु की जहाँ धारा बहती है, कनान देश, परमेश्वर ने कहा था मैं तुमको वहां ले जा रहा हूं. हाउ विल गो. यार आज के शब्द में कह लें, हाउ आई विल बी ब्लेस्ड. तो दो तीन बात हम तुमसे बताना चाहते हैं. ये जो इंसिडेंट है, इसके द्वारा दो तीन बात, there are 2-3 things I just want to share with you tonight about faith. Number one is the wall of Jericho fell by faith. इस चीज को मानो. यरीहो की दीवार जो थी वो विश्वास से ही गिरी. अगर यहोशू का विश्वास नहीं होता, एज ए लीडर, he was the leader of that whole crowd, big crowd. अगर उसका विश्वास नहीं होता, उसके लोगों का विश्वास नहीं होता, तो कभी भी वो दीवार गिर नहीं सकती थी. Hebrew chapter 11 and verse 30 हम लोग देखें. Hebrew chapter 11 and verse 30 वहाँ लिखा है, by faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. जब 7 दिन तक चक्कर लगाते रहे, तो by faith, कहीं बाइबल में लिखा है कि 7 दिन चक्कर लगाए के बाद वो लोग धक्का मारा, दीवार गिर गई. नहीं, चाहे ऊपर कोनो बम चाहे तोप चला दिया तो दीवार गिर गई. नहीं, लिखा है by faith. By faith, because faith has a force. Faith can do, by faith you can do many things. बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है. Everything is possible by faith. उसको समझो, उसको स्वीकार करो.
Try to understand that faith and accept it. That's the main thing. हम लोग डाउट ले आता है अपने दिमाग में, डाउट ले आता है. We always bring doubt in our mind. पता नहीं होई कि नहीं होई. मांगा तो था, गया रहा प्रेस फेस्ट में, वहां जाके प्रेयर कराया रहा. वो पादरी लखनऊ से आया था, वो प्रेयर किया और पादरी लोग प्रेयर किया था. लेकिन आ जाए बीच में ना, लेकिन नहीं हो सके, पता नहीं होई कि नहीं. जस्ट थ्रो दैट लेकिन. इफ और बट जो है ना, वो बड़ा खतरनाक है. इज रियली डेंजरस. इट डिक्रीजेज आवर फेथ. वो हमारे फेथ के कम कर दे, हमारे विश्वास को एकदम नीचा, एकदम थोड़ा कर दे. जब हम सोचे लेकिन, नहीं, नो लेकिन. If I have asked, if I have been prayed for, if somebody has prayed for you, or you have prayed and you have faith, then there is no lekin. There's no but. There's no if. हम तुम्हें बता रहा था, उस एग्जाम्पल बताया था वो पादरी और उसके वाइफ के बारे में. हमें बुलाया था जब उस अपनी मीटिंग में राजस्थान में, उदयपुर में 15 years पहले. हमें मालूम हुआ कि उनके घर में बच्चे नहीं है. वो दोनों हस्बैंड वाइफ 45-50 के आसपास हो गए थे, उनके घर में बच्चे नहीं थे. डॉक्टर ऑल्सो सेड यू कैन नॉट हैव चाइल्ड. I asked them, do you need child? Just say yes or no. They said, yes, we want, but. I said, don't say but. Don't say but. But नहीं बोलो. डॉक्टर बोली से होगा, वो बोला होगा कि नहीं हो सकते तुम्हें बच्चे. हो सकता है कोई भी बोला होगा तुम्हारे घर में बच्चे नहीं होंगे. But everything is possible for your Lord Jesus Christ. And next day, we kept fast and we prayed together. And after 1 month, I got news from pastor that his wife is pregnant. His wife is pregnant. And what happened after 9 months? I forgot that incident. But after 9 months, midnight, I got call from the pastor. He was excited. Almost 12:30 or 1 o'clock in the midnight. I was surprised why this pastor is calling me. What kind of meeting is going on at 1 o'clock? Why he's calling me? But he was excited. He said, Padri, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ. I said, what happened? Then I remembered, हमें लड़का हुआ कि बेटा हुआ कि बेटी हुई. कहने लगा, अरे क्या बताएं? हमने कहा बताओ. क्या हुआ? कहने लगा, एक नहीं, दो ही नहीं, तीन हुआ है ना, ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट्स. अभी यहाँ आए से पहले हम और हमारा वाइफ हम लोग गए फिर से वही उसके चर्च में. हमने देखा वो बच्चे, एक बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा, तीनों 15 years के हो गए, 9th grade में पढ़ रहे हैं. वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन. I have their photograph. I showed to Pastor Ami and other people also. We really thank God. Nothing is impossible for our Lord Jesus Christ. Just believe it. Devil is very clever, you know. He brings doubt in our mind. जहाँ तुम प्रार्थना करो, जहाँ तुम विश्वास की प्रार्थना करो, चाहे प्रार्थना करवाओ कोई पादरी से, तो क्या होता हुआ के कान में फूंके यहाँ बोले ना, नहीं हो पाई. It is not possible. Devil will come and say here in your ear, it is not possible. To tell devil, go away. तुम हमारे पास से चले जाओ. It is possible for my Lord Jesus Christ because I have faith in Him. He can do everything for me. Whatever I will ask, I believe that it has been done. जो हम प्रभु से मांगे हम जान जाते प्रभु उसको पूरा कर दिया है. He has done it. मेरे भाई बहन, यही मसीह विश्वास है. This is Christian faith. When you receive, when you pray and you receive, you don't see, but you receive it. That God has done for you. ये वॉल ऑफ जेरिको के बारे में जो हम पढ़ते हैं, लिखा है उन लोगों ने 2-3 बात. पहली बात तो यह है, द वॉल ऑफ जेरिको फेल बाय फेथ. विश्वास से वो गिर गई.
Believe in God and God, because God is powerful. हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. He is powerful in doing things. ऐसा नहीं खाली बोलने में नहीं है. खाली वो बोल के हमको शांति नहीं रहता. हाँ बेटा हम करें तुम्हारे लिए, है ना. हाँ बेटी हम तुम्हारे लिए करें, ठीक है शांत रहो तो हम सब कुछ करेगा. अब फिर गायब हो जाए, है ना. कई बार ऐसा लोग बोलते हैं. कई बार ऐसा हो लोग आके हमें सांत्वना दे, शांति दे, है ना. हमारे पीठ पर हाथ रखे, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा. उसके बाद पता ही नहीं लगता कहाँ चले गए. परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है. Our God is not that God. If He said He will do it. अगर बोला है कि करेगा तो करेगा. Because nothing is impossible for Him. We have to accept by faith. Matthew chapter 9 and verse 23. वहाँ लिखा है, according to your faith be it unto you. तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो. Not according to your coming here. नहीं कि तू यहाँ आ गए इसलिए हो जाएगा. नहीं, यहाँ लिखा according to your faith, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो. इसीलिए विश्वास बहुत जरूरी है. विश्वास पर हम जोर दे रहे हैं. आज जरूरत है हमारा विश्वास और मजबूत बने. मार्क चैप्टर 9 and verse 23. If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. है ना. वहाँ लिखा हुआ है, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. All things. बाइबल में कभी कभी कोई न शब्द को हमको जोर दे के पढ़ना चाहिए, है ना. Sometimes we should give special attention to certain words in the Bible. And see, it is written, all things are possible to him who believes. All things means all things, right? सब कुछ का मतलब है सब कुछ. तुम्हें कैंसर है, तुम प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु के चंगा करेगा. ऑल थिंग्स में वो भी आवे. तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें ऑल थिंग में वो भी आए. तुम्हें कोनो बहुत भयंकर बीमारी है, तकलीफ है, ऑल थिंग में वो भी आए. तुम्हारा फैमिली प्रॉब्लम है, ये ऑल थिंग्स में वो भी आए. सब कुछ ऑल थिंग्स में आए. कोनो चीज के बाहर नहीं है. सब कुछ का मतलब है सब कुछ. खाली बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे. हमें मालूम है कितना जगह पे ऐसा हुआ जहां इम्पॉसिबल दिखा था, परमेश्वर उसको पूरा कर दिया. जब विश्वास किया गया परमेश्वर ने पूरा किया. लेकिन उस विश्वास के लिए जरूरी है कि हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें. यहाँ वहाँ नहीं ताके, है ना. Many times we do this also, that also, and look to God also. It is not possible. That is not faith. That is not Christian faith. मसीह विश्वास तो वो है जब हम केवल और केवल प्रभु पर भरोसा रखें. तभी तो दीवार गिरी, है ना. What God has told them to do. परमेश्वर क्या बोला उनको करने के लिए, जोशुआ को और उसके लोगों को. हम कभी कभी हमें हंसी आवे ना. परमेश्वर भी कई बार ऐसा काम बोल दे करे के लिए जो सोची कि क्या प्रभु यही काम रहा करे के लिए ना. प्रभु क्या बोला, जॉगिंग करो. जॉगिंग करो. और भी एक दिन नहीं, 6 दिन 7 दिन तक जॉगिंग करो. हेल्थ के लिए अच्छा है जॉगिंग करना, है कि नहीं. इट्स गुड टू डू जॉगिंग. एंड गॉड टोल्ड देम जस्ट गो अराउंड. बस दीवार के चारों ओर चक्कर मारो 6 दिन तक, 6 days. और 7वें दिन 7 बार चक्कर मारो. हे प्रभु बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है. हमारी पत्नी कई बार बोले चलो जॉगिंग के लिए, हम करना हम नहीं जाए. बड़ा मुश्किल होता है. अच्छा चलो छत पर थोड़ा टहल लो, वो मुश्किल लगे. बड़े कठिनाई से जाए वहां. बड़ा कठिन है. बट वी हैव टू डू व्हाट गॉड इज सेइंग, वी हैव टू डू. नाउ द सेकंड थिंग इज द वॉल ऑफ जेरिको फेल व्हेन गॉड्स पीपल followed God's plan and their leader.
वॉल ऑफ जेरिको तब गिरा जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्लान के अनुसार किया और उसके अपने लीडर की बात को माना। अगर वो जोशुआ की बात को नहीं मानते, क्या जोशुआ क्या करने को बोल रहे हो, अरे चलो तलवार लेके चलते हैं, वी हैव स्वॉर्ड, वी विल गो एंड फाइट विद देम, देखते हैं कहीं से कोने दीवार में कहीं छेद हो जाए, हम लोग भीतर घुस जाए, चले जाए, कहीं कूद फांद के चले जाए, गेट तोड़ के चले जाए, सब अपना अपना प्लान बताते रहते, तो कभी वो वॉल नहीं गिरता। एंड मेनी टाइम्स दिस हैपन, वी डोंट वांट टू लिसन आवर लीडर्स, वी don't want to do according to God's plan, we fix our own plan and that परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा करो तो ठीक होगा ना, यहाँ नहीं वहां ले जाओ तो ठीक होगा। कई बार ऐसा होता, हम अपना प्लान फिक्स करे कोशिश करें। नेवर डू दिस। क्रिश्चियन फेथ इज व्हेन वी बिलीव दैट व्हाट गॉड इज सेइंग दैट इज ट्रू, वी फॉलो हिज प्लान एंड हिज लीडर्स, हिज चोजन लीडर्स। जब उसके चुने हुए अगुओं की हम के साथ चलते हैं, परमेश्वर अपनी योजना को हमेशा पूरी करे। परमेश्वर की योजना क्या थी? 6 दिन चक्कर मारते रहो, 6 डेज तुम इसके चारों चलो, फिर 7 डेज 7 टाइम चलना, अब बाद में आखिर में जोर से चिल्लाना, और दीवार गिर गई। प्रभु का धन्यवाद हो। दैट इज एक्चुअली फेथ। व्हेन वी फॉलो गॉड्स प्लान, परमेश्वर का प्लान को जाने मांगो तो बाइबल पढ़ो वचन के अनुसार। यही प्लान है प्रभु का। प्रभु का प्लान तुम्हारे मेरे जीवन के लिए यही है और कुछ नहीं। चाहे तुम कहते ना भारी भारी बाइबल कॉलेज चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, वो सब ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है, वचन नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। यही वचन तुम्हारा अगुवाई करेगा। दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। I have kept your word in my heart so that I will not sin against you. हम तेरे विरुद्ध पाप न करें, because this is the word of God which will guide you. It will tell you what is God's plan for your life. तुम्हारे जीवन के लिए उसकी क्या योजना है। मेरे जवान बच्चे, खासतौर से हम आपसे कहना चाहते हैं, young people here, I just want to tell you especially, maybe you are seeking God's plan for your life. शायद आज के दिन में तुम परमेश्वर की योजना को खोज रहे हो। प्रभु तुम क्या चाहता है कि हम तुम्हारे लिए करें? एक वचन पढ़ जाओ, वचन पढ़ना शुरू करो, and he will show you his plan. He will show you his plan. कितने लोग दुनिया में थे जिनका जीवन इस बाइबल से बदल गया, खाली बाइबल पढ़े से बदल गया। कोई मीटिंग में नहीं गए, कोई ऐसे फेस्टिवल में नहीं गए, कोई क्रूसेड में नहीं गए, कोई चर्च में नहीं गए, but because they were reading the word of God, God has changed their life. And I remember one person, his name was Lew Wallace. वो जन रहा, वो एक राइटर रहा, मसीही नहीं था। वो एक नॉवेल लिखे लगा, एक इमेजिनरी नॉवेल रहा, हिस्टोरिकल नॉवेल। अब तुम उस नॉवेल का नाम जानता होगा, उस पर फिल्म भी बनाया, पिक्चर भी बनाया, बेन-हर के नाम से। सुना है ना बेन-हर? कभी भी तुम यूट्यूब में भी देख सकता है, और से भी थिएटर्स में भी लगती है। बहुत क्लासिकल मूवी है बेन-हर। अब उसका नॉवेल रिटन बुक भी आ गया है, पेपर बैक भी आ गया है उसका, तुम पढ़ सके हो। अब बेन-हर जो रहा, वो ल्यू वॉलिस जो रहा, जब बेन-हर लिखत रहा, उस समय में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मसीहत का प्रचार यूरोप के क्षेत्र में हो रहा था। बहुत लोग मसीही हो रहे थे। तो उसके दिमाग में एक बात आया, वो तो मसीही नहीं था, he was not a Christian believer. So something came in his mind. He said, if I put something, if I take something from the Bible and write in my novel will be sold more. कमर्शियल माइंड आ गया दिमाग में ना। हमारा नॉवेल जब खूब बिकी, अगर थोड़ा सा हम बाइबल का कोनो बात ले आए। कभी बाइबल तो पढ़ा नहीं था ना, बाइबल होकर पास रही। He never read Bible, he didn't have Bible,
he remembered that he has a friend, he is a pastor in another city. दूसरे शहर में उसका एक फ्रेंड है जो पादरी है. वो ट्रेन पकड़ा, चला गया अपने फ्रेंड, पादरी फ्रेंड के पास. उसको बताया, आई एम राइटिंग दिस नॉवेल, द हीरो ऑफ माई नॉवेल इज Ben-Hur. It is an imaginary historical novel, but I want to take something from the Word of God, from the Bible, so that my novel will do a good business. मेरे नावल से अच्छा बिजनेस हो. कुछ बाइबल का बात बताओ. वो पादरी सोचे लगे क्या बताएं इसको, 1 घंटा में बैठ करके तो पूरा बाइबल पढ़ा नहीं सके. वो गया कमरा में से एक बाइबल निकाल के लाया. अब लियो वॉलिस को दे दिया, कहें ऐसा करो, तुम तो लिखे पढ़े वाले हो, ये बाइबल ले जाओ, अब पढ़ो, और जोन चीज तुमको अच्छा लगे अपने नावल में डाल देना, अपने नावल में लिख देना, जोन तुमको पसंद आए. कितना चीज है हम बता नहीं सकता तुमको. लियो वॉलिस बाइबल लेकर के आया, जेनेसिस चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू किया. पढ़ता गया. He read the Bible one chapter after one chapter again, and then again another book पढ़ता गया. By the time he reached to Revelation, इससे पहले कि वो रेवलेशन तक पहुंचता, आखिरी किताब तक, प्रकाशित वाक्य किताब तक, परमेश्वर ने लियो वॉलिस के जीवन को बदल दिया. लियो वॉलिस का जीवन एक मसीही जीवन हो गया. He believed in Jesus Christ. He believed that Jesus is the only Savior. He believed that Jesus can save his life. And that is the reason उसने बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन किया है अपने नावल में प्रभु यीशु मसीह का. कभी तुम्हें मौका मिले जरूर देखो, और नहीं तो नावल मिले तो जरूर पढ़ना उस Ben-Hur के नाम से. Nobody preached him. He just read it. God has given him more success. परमेश्वर ने उसको उसकी नावल से और उसको सक्सेसफुल बनाया. परमेश्वर उसके नावल से और लोग जो थे आशीषित हुए. पहले तो खाली एक नावल की तरह लिखत रहा, लेकिन बाद में इट बिकेम ए बेस्ट सेलिंग बुक हो गई. और आज तक लोग उसका जो मूवी बना है एक क्लासिकल मूवी के रूप में जानते हैं. परमेश्वर किसी के जीवन को बदल सकता है. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है. इट वर्क्स. और इसलिए जरूरी है प्रभु के आज्ञा को मानना. द वॉल ऑफ जेरिको फेल बिकॉज द पीपल ऑफ इस्राएल दे फॉलोड गॉड्स प्लान एंड दे फॉलोड देयर लीडर. परमेश्वर के प्लान को उन्होंने माना और उसके लीडर को माना. लेकिन लीडर भी सही लीडर होना चाहिए ना. जोशुआ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, when we read about Joshua, there are 4 qualities of Joshua. There are 4 qualities. आप कभी भी उसका स्टडी कर लेना. बुक ऑफ जोशुआ में 4 बड़ी क्वालिटी उसके अंदर थी जो उसको एक अच्छा लीडर बनाती थी. नंबर 1, he was called by God. कोई आदमी उसको, कोई इंसान, कोई कमेटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं बुलाया था सेवा के लिए. परमेश्वर उसको चुना था, परमेश्वर ने उसको बुलाया था और जानता रहा कि हम परमेश्वर की सेवा में आए. नाउ द सेकंड क्वालिटी इज ही वाज फेथफुल टू गॉड. वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, फेथफुल था. जो प्रभु कहे, जो परमेश्वर यहोवा कहे, नो क्वेश्चन. आज प्रॉब्लम यही है हमारे विश्वास में. हम बिलीवर कहलाए तो है, लेकिन हम हमेशा प्रभु के सामने क्वेश्चन रख दें. प्रभु अगर हमसे बोले ये करे के लिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए. प्रभु जी कैसे होई, कौन करी, कहाँ जाए, कौन कैसे होगा. वी ऑलवेज पुट क्वेश्चन मार्क इन गॉड्स प्लान एंड दैट इज रॉन्ग. कभी भी तुम रिजल्ट नहीं देख पाएगा अपने फेथ का. कभी रिजल्ट नहीं देख पाएगा. यू कैन नॉट सी द रिजल्ट ऑफ योर फेथ if you just put a question mark in God's plan. परमेश्वर की योजना में है, उसका लिखा हो ये was faithful. और तीसरी बात जो सबसे बड़ी, जो पहले दिन में हम बताए थे, जो सक्सेस की परिभाषा, जो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उसमें था, he was a positive man. He was a positive person.
He always see the things positively. सकारात्मक तरीके से देखता था, नकारात्मक नहीं. सकारात्मक ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलते हैं. Devil is very clever. He always take us to negativism. शैतान बहुत चालाक है, हमेशा तुम्हें निगेटिव की तरफ जा. नहीं हो सके, यहाँ के बोली नहीं हो सके, हमेशा निगेटिव चीज दिखाए तुम्हें. और यही काम तो अदन की वाटिका में कर दिया ना, हवा को पकड़ लिया. हम कभी कभी सोचे हैं बाइबल में बहुत चीज नहीं लिखा है, लेकिन वो चिल्ला के नहीं बोला होगा, डांट के नहीं बोला होगा. He was not, he didn't shouted on Eve. बड़े प्यार से बोला होगा, है ना, सिस्टर जी, है कि नहीं. अब सिस्टर जी तो घूम गई, यहाँ कौन ब्रदर आ गया. जहां बोला सिस्टर जी बड़े प्यार से, तो सिस्टर जी मुड़ के देखिए, अरे देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा. कौन तुमको बोला है? परमेश्वर भी जानता है कि तुम नहीं मरोगे. He was telling, even he was challenging God. God also knows that you will not die. Who said? Who told you that you will die? It's good to see. देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा. सिस्टर जी तो भाग गई, अपने भी खाई, ले जा करके पति को भी खिला दिया. वो जोरू का गुलाम वो खाली सन. अरे कम से कम पूछ लेता. पूछा तक नहीं कि कहाँ से लेके आई हो तुम. हमें तो कई बार हम सोचे बैठ करके तो हमें लगे, हमें हंसी भी आए. अरे भैया पूछ लेता तू कहाँ से लेके फल आई है. वो भी पूछे भी नहीं, वो भी ले लिया, हाँ बहुत अच्छा है खा ले, है ना. वही मार तो पादरी एक बोला रहा कि वो जो फल खाया रहा वो पपीता रहा, पपाया, पापाया, है ना, पापाया. वही मारे पपाया उसका नाम है, पापाया. सिन के नहीं पूछा, अब पाप इस दुनिया में आ गया. Devil is very clever. He will always turn your positive thinking in negativism. हमेशा तुम्हारे कान में आके निगेटिव बात फूकेगा. कोनो तुम्हें लिए प्रार्थना करे भी आएगा तो कहेगा देखा ये तो बहुत सावधान है ना, ये पादरी ठीक नहीं है ना, वो पहले बता दी. अरे वो बेचारा पादरी गया तुम्हारे लिए प्रेयर करे के लिए, तुम्हारा दुख सुख जाने के लिए, लेकिन क्या है, डेविल कह दी कान में कुछ ना कुछ. बी केयरफुल, बी पॉजिटिव. जोशुआ वॉज ए पॉजिटिव पर्सन. वो सब सवाल नहीं किया, प्रभु जी ये जॉगिंग करे से कौन फायदा है. तुम बोल रहा है कि 6 दिन 7 दिन तक जॉगिंग करो इस दीवार के चारों ओर, ये कौन मतलब है. He never asked this. ये जॉगिंग करे से क्या होगा, कुछ नहीं, कई लोग मर जाए बेचारा इतना दिन जॉगिंग करते करते. लेकिन never asked any question. He said, Lord, what you are saying, we'll do it. Hallelujah. This is Christian faith. This is Christian faith. When you say, Lord, what you are saying, whatever you are saying to me, you are telling me to do, I will do it. I will do it. लिखा हुआ है, जब हम जोशुआ के बारे में पढ़ते हैं, he was called by God. Number 1, he was faithful. Number 2, he was positive. And the 4th thing is, he was filled with God's word. वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था. जो प्रभु परमेश्वर यहोवा बोलता है वही जाकर के बोलता है. अपने मन से कोनो बात नहीं बोला. उनसे नहीं बोला ठीक है चक्कर मारना धीरे धीरे, अगर तुम्हें थकावट लगे तो जाके बैठ जाना. नहीं, परमेश्वर यह बोला है जॉगिंग करना है तो करना है, तुम जाओ. जो परमेश्वर कह रहा है उसको मानना है. दिस इज क्रिश्चियन फेथ. आज प्रभु डाउट ले आए हम लोग दिमाग में, लॉजिक हम लोग बैठा है ना. Many times we use logic to understand Christian faith. Many times we use logic to understand God's work. And this is the work of the devil. I want to tell you. ये शैतान का ही काम है, परमेश्वर का काम नहीं है. परमेश्वर का काम तो ये है जो कह रहा है वो करो, जो बोल रहा है whatever he is saying, do it. That is Christian faith. आगे जो हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है they followed the leader, they followed the plan of God.
and God has done great things. परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया. परमेश्वर ने उस दीवार को गिराने में उनकी सहायता किया, इसलिए कि उन्होंने अपना लॉजिक नहीं लगाया कि कैसे होगा. तलवार तो हमारे हाथ में है, हमारे पास लड़े के लिए सब कुछ है. वी हैव sword and spears and everything, and God is telling us to go around. लेकिन वो चलते रहे और 7वें दिन लिखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, जैसा परमेश्वर ने कहा था, उन्होंने जोर से जय जयकार किया और दीवार गिर गई. और आपको मालूम है, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़े, बाइबल हिस्ट्री, बहुत चीज मालूम पड़ता है. जब उन्होंने जोर से चिल्लाया, लिखा हुआ बाइबल में नरसिंगा फूंका गया, और जोर से उन्होंने चिल्लाया, याजकों ने नरसिंगा फूंका, तो दीवार गिर गई. और गिरी कैसे, उसका गिरने का तरीका भी रहा. कई बार जैसे कोई चीज गिरता है, जैसे अभी तुम शायद टीवी में देखा होगा, क्या म्यांमार में, बर्मा में और थाईलैंड में अभी वो अर्थक्वेक आया था, है ना. कैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो था एकदम भरभरा के नीचे गिर गया, एक एक ईंट गिर गया, सब चीज एकदम बिखर गया. लेकिन यरीहो की दीवार जब गिरी तो भरभरा के नहीं गिरी, सीधा एकदम, ये दीवार यहाँ है, ऐसे गिर गई. यरीहो की दीवार एकदम नीचे गिर गई. उसका ईंट अलग नहीं, पत्थर अलग नहीं हुआ, लेकिन वो गिर गई कि रास्ता बन गया कि ये लोग अंदर चले जाएं और जा करके उस शहर को जीत लें. केवल इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को माना था. लेकिन हम तुमसे एक बात बताना चाहते हैं, क्या परमेश्वर अपने लोगों से मजाक कर रहा था? वो चाहता तो एक दिन में ही दीवार गिरा सकता रहा. अगर वो चाहता तो एक दिन में ही दीवार गिरा सकता रहा. परमेश्वर के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. ही कुड हैव डन दैट मिरेकल इन वन डे, इवन 1 आवर. एक ही चक्कर में वो दीवार गिर जाती है, एक चक्कर लगाए में. व्हाई 6 days? क्यों परमेश्वर बोला 6 दिन चक्कर मारना, 7 दिन चक्कर मारना, और 7वें दिन जा करके चिल्लाना? अब परमेश्वर ने एक और आज्ञा दी. हम सब पद नहीं पढ़ रहे, सब जानते हो. यहोवा ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने, चुपचाप, बिल्कुल हल्ला नहीं, चुपचाप चक्कर मारना. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर इसराइल टू डू. इतना ढेर लोग हैं और सब चुपचाप रही तो हो ही नहीं सकता ना. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. एक संडे स्कूल में कंपटीशन हो रहा था. वहां पूछा गया बच्चों से, उनसे पूछा गया कि एक ऐसी चीज बताओ, एक कहानी लिखो, ऐसी घटना जो तुम सोचते हो सबसे अद्भुत घटना है, समथिंग वेरी स्पेशल एंड वंडरफुल, सबसे यूनिक घटना हो. सब बच्चे कुछ कुछ लिखे. एक बच्चा बोला, हमारे चर्च के पास स्टेट कमेटी में 10 मेंबर थे और 10 चुप थे. कोनो कुछ नहीं. इस्राएली लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत कठिन था. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर देम टू जस्ट गो अराउंड दैट वॉल साइलेंटली. बट गॉड हैज सेड दे हैव टू ओबे. व्हाई साइलेंटली एंड व्हाई 6 days? I tell you, the Holy Spirit revealed me that because the 6 days the God was working. Hallelujah. ये 6 दिन परमेश्वर काम कर रहा था, वो बैठा हुआ नहीं था. परमेश्वर दीवार को ऐसा बना रहा था कि वो गिर जाए. परमेश्वर उनके साथ था. तुम चुपचाप रहना, मैं काम करूंगा. हालेलुया. कितना बार हम लोग बोलते भी जाते हैं, हम ढेर ढेर चिल्लाए, ढेर हल्ला करे, अपन प्रॉब्लम लेके प्रभु के पास जाए. प्रभु कहे चुपचाप रहे, डोंट टॉक, सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू, बिकॉज वर्क आई विल डू. I will do the miracle. Lord says, I will do the miracle. You need to just see. And that is Christian faith.
यही मसीह विश्वास है। जब हम एक बार प्रार्थना करके हम प्रभु के सामने आ जाते हैं, चुपचाप हम कहते प्रभु बस तेरी मर्जी पूरी हो। मेरा विश्वास है तूने ये काम कर दिया है, इस बीमारी से हमें छुटकारा दे दिया है। यू हैव गिवन मी फुल हीलिंग। आई नो दैट, although I know that I am not healed, but I believe that. Now I just keep silent and I know that you are working. तू काम कर रहा है प्रभु। ये 6 दिन तक प्रभु काम करता रहा। और तब मेरा ध्यान उधर भी गया, मार्था, मरियम और लाजरस के बारे में नए नियम में हम लोग पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है मार्था, मरियम, लाजरस, ये परिवार था, 2 बहन एक भाई। प्रभु यीशु मसीह इनसे बहुत प्यार करते थे। Jesus really loved them, loved this whole family. Whenever he passed through that way, he used to go in their house and eat with them, fellowship with them. एक दिन क्या हुआ, लाजर मर गया। लाजर मर गया। प्रभु यीशु मसीह कहीं के नियर बाय सिटी में थे, उनको खबर मिली लाजर इज डेड नाउ, योर बिलवड फैमिली मेंबर he is already dead. तेरा प्यारा परिवार के एक व्यक्ति मर गया है। And the Bible says Jesus hasn't come immediately there. 2 दिन तक वो वहां पर रुका रहा, नहीं आया, अभी नहीं आया लाजर को देखने के लिए, लाजर के मृत्यु पर नहीं आया, वहां पर इसको मार्था मरियम को शांति देने के लिए नहीं आया। 2 दिन वहीं रुका रहा। Why? क्योंकि जब लाजर की कब्र पर 2 दिन के बाद आया, वो कहता कब्र का पत्थर हटा दो। मार्था कहती इसमें से तो अब बदबू आती है, must be stinking. You are telling to remove that stone. Now this is 3rd day. He has already died. My brother has already died. You are late. But my dear brothers and sisters, I want to tell you, our God is not late. कभी वो देरी नहीं करता है, कभी वो देरी नहीं करता है। और when he came on the grave of Lazarus, जब वो लाजर के कब्र पर आया तो लिखा हुआ है he is praying, Lord I thank you, Father I thank you that you have heard my prayer. He didn't pray there. वहां पर कोई दुआ नहीं किया, वहां कोई प्रार्थना नहीं किया था। कहता है बट यू हैव हर्ड माई प्रेयर। वो 2 दिन क्या कर रहा था? 2 दिन तक जो नहीं आया वो क्या कर रहा था? He was praying. He was praying. He was asking the Lord. He was asking his father, give me strength. I want to see my beloved Lazarus to live again. I don't want to see the tears of my dear Martha and Mary. He was praying, and that's why when he came to the grave, he said, Father, I thank you that you have heard my prayer. Already सुन लिया है, तू मेरी प्रार्थना सुन लिया है। 2 दिन तक वो वहां प्रार्थना करता रहा। मेरे भाई, मेरी बहन, कभी मत ये सोचो परमेश्वर तुमसे दूर हो गया है, या परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुना है, परमेश्वर तुम्हारे विश्वास को नहीं देखा है। Never think about that he has not heard your prayer or he has not seen your faith. He has seen it. He has time. He is praying for you. He is doing something for you. He has a big plan for your life, and he will do. He will do in his time. Because he loves you. उसका प्यार महान है। लिखा परमेश्वर के प्लान के अनुसार चलो, उसकी बात को मानो, और देखो परमेश्वर तुमको आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा, वो तुमको लिए जाएगा, वो तुम्हारी सहायता करेगा। पीटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पीटर मछुआरा था, मछली मारता, रात भर मेहनत किया, एक भी मछली नहीं मिली। Whole night he worked hard, he didn't get any single fish. That was his business. And Jesus came there. And it was morning time. और हम लोग जानते हैं दिन के समय मछली नीचे चली जाए, जैसे ही सूरज उगे मछली और गहरे में चला जाए, तब मछली मारना मुश्किल है। लेकिन रात के समय मछली ऊपर जब आती है, वही टाइम मछुआरे लोग मछली मारे, वही टाइम मछली पकड़े।
Peter knew about it. His way of doing this business, he knew very well. वो अपने बिजनेस को करेगा सही तरीका जानता था. रात में मछली पकड़ो. यहाँ तो प्रभु दिन में आ गया. कहने लगा, पीटर इस तरफ तू जाल डाल, पतरस तू इस तरफ डाल डाल. तो दिन हो गया. हे प्रभु अब तो दिन हो गया. रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ. But there is a beautiful word in there. लिखा हुआ है, तो भी, because you are saying, Lord, I will do it. Can you say tonight, Lord, because you are saying, I know that I will do it. Because you are saying. Your word has said. तुम्हारा वचन कहता है कभी घबराना नहीं, परेशान नहीं होना. तुम्हारा वचन कहता है कि तुम चंगाई देने वाले हो. तुम्हारा वचन कहता है कि तुम सारी समस्या से छुड़ाने वाले हो. तुम्हारा वचन कहता है तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे. Because your word is saying, because you are saying, Lord, I will do it. That is Christian faith. ये मसीह विश्वास है. और हम जानते हैं जैसे वो जाल डाला, इतना मछली पकड़ लिया क्योंकि जाल फटे लगा. नाव भर गई. दूसरा नाव मंगाया, लोगों को बुलाया, ओ हेल्प करो, हेल्प करो. परमेश्वर हमेशा तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है. Jesus is always ready to help you. Only thing you must have that Christian faith, the real faith in Jesus Christ. No लेकिन और but or anything. तीसरी और आखिरी बात कह के हम खत्म करना चाहेंगे. तो तीसरी बात थी वो ये थी, the wall of Jericho fell when God's will was done without questioning. जब लोगों ने कोई सवाल नहीं किया, प्रभु ने कहा चक्कर लगाओ, जॉगिंग करो, तो हम जॉगिंग करेंगे और करते रहे. जैसा प्रभु ने कहा वैसे हम करेंगे. और चौथी बात जो है, the fourth thing is the wall of Jericho fell for God's glory. ये बड़ा मिरेकल हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए. क्योंकि हम लोग जानते हैं इससे पहले कि वो जेरिको के चारों ओर इस्राएल लोग चक्कर लगाते, जोशुआ ने दो सिपाही लोग को, जासूस लोग भेजा इन्वेस्टिगेशन करे के लिए. अब वो लोग गए वहां पर, तो चढ़ गए दीवार पर और देखे वहां पर एक कोठरी है. और उसमें कौन रहती थी? एक वेश्या रहती थी. एक ऐसी स्त्री जो ठीक नहीं थी, जिसका जीवन एक गंदा जीवन था, जिसका जीवन पाप में बीत रहा था, जो किसी लायक नहीं थी. समाज में उसको गिरी दृष्टि से देखा था. पीपल नो दैट शी इज नॉट ए राइट लेडी, शी इज लिविंग इन सिन. हर नेम वाज राहाब. वो पाप में जीवन बिता रही है. एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट. लेकिन उसने प्रभु के लोगों को वहां पर छिपा लिया, उनको बचा लिया और एक प्रतिज्ञा किया कि जब भी, ये बड़ा बहुत भारी फेथ है. देखो, इतने पापनी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसको समाज में सब लोग नीचा दृष्टि से देखे, जिसको समाज में लोग देखे कि तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत गंदी औरत है, बहुत पापनी औरत है, शी इज द ग्रेट सिनर. वो उसका फेथ रहा. वो कहने लगी जब भी तुम इस शहर में आओ, इस पर विजय प्राप्त करो, तो मुझको और मेरे परिवार को बचा लेना. She knew about that. She knew about that. She knew that these people are the people of God. They are sent by God, the living God. वो जानती थी इस बात को. राहाब जो थी, हम जानते हैं उसने बचाया. और क्या हुआ? जब दीवार गिरी तो राहाब और उसका परिवार पूरा बच गया. Her whole family was saved. And that's the same राहाब. वही राहाब वेश्या थी जो कि पापनी स्त्री थी, जो कि ऐसी स्त्री थी जिसको कोई पसंद नहीं करता था. She was the mother of Boaz. वो बोआज की माँ थी. और बोआज जो था वो ग्रेट ग्रैंडफादर था किंग डेविड का. किंग डेविड उसी यीशै जो डेविड का फादर था, उसी परिवार से आया. राहाब से बोआज, बोआज से फिर किंग डेविड जो ग्रेट ग्रैंडफादर था उस डेविड का.
और हम सब जानते हैं कि उसी से यीशु मसीह भी पैदा हुआ जो दाऊद के परिवार का था। यीशु मसीह उसी परिवार से आया। मेरे से ये परमेश्वर की महिमा है। और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं रूत की किताब में उसका 4 अध्याय 4th chapter and 18th verse में राहाब के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन हिब्रू चैप्टर 11 और वर्स 31 में देखिए क्या लिखा है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 31 वहाँ बड़ा साफ राहाब के बारे में लिखा है। वहाँ लिखा है, बाय फेथ द हार्लट राहाब डिड नॉट पेरिश विद दोज हु डिड नॉट बिलीव व्हेन शी had received the spice with peace. With peace. Harlot. She was harlot. Not a good lady. But she became the mother of Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर बन गई। मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, परमेश्वर आपके जीवन से बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसी के खानदान से आए, उसी के परिवार से निकले, और आज वही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उद्धार का कारण बन गए। मेरा आपके लिए उद्धार का कारण है। मुझको और आपको मुक्ति उसी के द्वारा मिलती। आज प्रभु चाहता है हमारा फेथ और बढ़े, हमारा फेथ और मजबूत हो, हमारा फेथ प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ता जाए। God wants our faith to increase more and more, or more bigger faith He wants to see. But how it will happen when we follow His word? जब हम उसके वचन को मानेंगे। ये वचन से बाहर मत जाना, ये वचन से अलग मत होना, इससे लगे रहना और देखना परमेश्वर तुमको आशीष देगा, तुम्हारी कलीसिया पर आशीष देगा। लोग सुने चाहे ना सुने, जो लोग को पसंद हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उसको बताना, वही बताना। Whatever is word of God is saying, speak, tell other people. Never try to speak anything else to please people. No, please God. परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। प्रभु तुम्हारे साथ हो, हमारी यही प्रार्थना है। हम लोग का विश्वास बढ़ता जाए, हम लोग और अधिक विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर की ओर देखें। तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, परमेश्वर के साथ सामने विश्वास से आओ, वो तुम्हें समस्या से छुटकारा देगा, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें चंगाई देगा। मे बी डॉक्टर हैज सेड इट इज नॉट पॉसिबल टू हील यू, but there is possibility with Jesus Christ. There's a possible with Jesus Christ. Nothing is impossible for Him. मैंने अपने जीवन में आजमाया है। Just give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद देते रहो। एक बार प्रार्थना करो विश्वास की केवल। Just pray one time only with faith, real faith. The Lord, take away this problem from my life. Take away this problem from my life. And I tell you, He will do that. Give Him time. Give Him time. Because He will not sit. He will not just आपको काली दिल बहलाने के लिए आपको नहीं बोलेगा, लेकिन वो आपके लिए करेगा. He will do it. Just receive it by faith. और उसके बाद प्रभु को धन्यवाद देते रहो. Just give thanks to the Lord. I know that you have done it. It has not been done. But just give thanks to the Lord, you have done it. तूने कर दिया है. जब आप प्रभु को धन्यवाद दोगे, you will see that how Lord is going to bless you. He will take away all your problems and give you a new life, give you a pure life. He will make your sanctuary pure for His glory and for His honor. I know from my own life, I have a testimony. I was born after 12 years of my parents' marriage. Doctor said, you cannot have any child. I don't know, there must be some physical problem. But doctor said, you cannot have child. But my mother, she used to pray. She was a lady of prayer. Always she used to pray, God, give me a child. Give me a child, boy or girl. Whatever you think is good, just give me. I will give her or him
for your service. I thank God that she has kept her promise. Many times we promise God, but once we receive the blessing, we forget it. We forget it. Never forget. If you promise something to God, do it. Do it. And what happened? After 12 years, I was born. I was born. It was a miracle. Because there was the same doctor. He knew about my mother and father. He was surprised. He said, it is really a miracle. It is a miracle that you have a son. But when, during my birth time, there's something happened. It was a cesarean case. Parents, they know what I mean. So with that forceps, my this eye, the right eye, was badly hurt. It almost gone. For cesarean case, that doctor was not very trained and there was no medical facility because we were living in a village, remote village. We didn't have enough money. My parents didn't have money to take me to Bombay or Delhi or any big city for treatment. But my this eye has gone. My right eye is because of the doctor's forceps. तो जब हम पैदा हुए तो हम काना पैदा हुए, एक आंख बंद. हमारे एक आंख बंद रही. My right eye, this eye, I could see only with one eye. घर ले आया गया, हॉस्पिटल से घर आ गए. जब घर आ गए सब लोग देखें, लेकिन गांव देहात में जाने हो ना जो दूसरे लोग हैं तो कहें अरे देखो इसको, एक तो इतना साल बाद बेटा हुआ और वह काना है, एक बल्ब फ्यूज है. एक तो इतना साल बाद बेटा हुआ, तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, हाथ पैर सब ठीक है, लेकिन एक आंख नहीं है. And my mother didn't like it. She used to pray, Lord, when you give the best. And that was the mistake my mother did. She used to ask, why? Why my son is like that? Why my son has only one eye to see? Why, Lord? And then one day, one pastor came. He was a Christian sadhu, Sadhu Jivaratnam. His name was Sadhu Jivaratnam. He used to travel around and preach the gospel. So one day he came and he was also happy to know that they have a son after so many years, because he used to come every year in our family. My father was pastor. When he came, he was happy. But he saw my mother was not happy. He saw that my mother is not happy. So he asked my mother, sister, what happened? Why are you not happy? What is the problem? And my mother said, brother, God has given us one son, handsome son, but there is a problem. Because of the doctor's mistake, his one eye has gone. डॉक्टर के मिस्टेक से उसका एक आंख चला गया, एक ही आंख से देख सके खाली ऐसे, है ना. कहे तुम क्या करती हो? What do you do? She said, I am praying. My mother was a simple lady. She was brought up in an orphanage. She didn't know nothing else. Only she knew how to pray and have faith in God. She said, I am praying to the Lord. If you can give me a son after 12 years, you can heal his eyes also. And you know what pastor said? Pastor said, sister, stop praying. Now stop praying. Don't pray, Lord, heal his eyes. Just give thanks to the Lord. Lord, I thank you that you gave me a son. At least he can see with one eye. At least he can see with one eye. प्रभु से प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो. मेरा बेटा अंधा तो नहीं है, एक आंख नहीं है, कोई बात नहीं, एक आंख से देख तो सके. Until my mother lived, she used to give this testimony. The day she has started giving thanks to the Lord. That is the positive attitude. You remember that. That's why positivity is must in faith. When she started giving thanks to the Lord, Lord, I thank you. I thank you for this son. I thank you for his one eye. At least he's not blind. He can see.
मेरा ये आंख भी ठीक होने लगा ये आंख भी ठीक हो गई लगा विदाउट एनी मेडिसिन विदाउट गोइंग टू एनी डॉक्टर ये आंख भी ठीक होने लगा अपने आप ठीक होने लगा दैट वाज अ मिरेकल एंड माय मदर यूज्ड टू से इट्स बिकॉज till I was negative I was just asking question to Lord why nothing happened the day I became positive give Lord thank you Lord for this eye at least he can see my this eye also healed ये हमारा आँख वाला पत्थर का नहीं है ना it's not stone eye I can see you I can see पहले तो हम चश्मा भी नहीं लगाता रहा ये तो अब एज के हिसाब से लगाया लगा लेकिन पहले इसका भी जरूरत नहीं रहा गॉड इज हील बी पॉजिटिव डोंट लुक टू योर प्रॉब्लम्स ऑलवेज I'm not happy when I talk to many people, even men of God. Those who said that they are believers, whenever you talk to them, they talk always about their problems. Always they talk about problems. क्या करें पादरी ये हो गया क्या करें पादरी उसमें है अरे हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमारी ही नहीं है तो हमारा लड़का ये कर हमारी लड़की काहे के लिए प्रॉब्लम का बात करो तुम देखो कौन चीज़ बढ़िया प्रभु तुम्हें दिया है ना व्हाट गॉड हैज गिवन यू द बेस्ट इन योर लाइफ व्हाट गॉड हैज given the blessings in your life just give thanks to the Lord and God will remove all your problems I tell you all your problems because once you give thanks to the Lord you are positive तुम पॉजिटिव हो जाते हो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे तुम्हारे साथ हो आज का दिन समय है जब हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए हैव फेथ लाइक दिस लाइट्स फेथ लाइक जोशुआ यहोशू के समान तुम्हारे अंदर विश्वास आ जाए वो दीवार गिर जाए वॉट एवर दीवार यू आर फेसिंग एज ए प्रॉब्लम वो गिर जाए जरूर गिर जाए तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है बट उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए पॉसिबल है परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे when we are the choir is going to sing this song I just want to stand up all of you can stand and just come forward we'll pray for you this last chance when you can say Lord increase my faith तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ आज यही प्रार्थना करो आज और प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना मत करो तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है बीमारी है तकलीफ है फैमिली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है डोंट प्रे फॉर दैट I just say thank you Lord whatever you have given to me thank you Lord for my own life increase my faith make my faith big तुम मेरे विश्वास को बड़ा करो प्रभु ताकि हम हर दीवार को गिरता हुआ देख सकें हम हर दीवार को गिरता हुआ देख सकें परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा परमेश्वर तुम्हारे प्रॉब्लम से तुमको छुटकारा देगा स्टॉप प्रेइंग अबाउट योर प्रॉब्लम नो डोंट प्रे जस्ट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड जस्ट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड